Assalamu alaikum dear students. I am Mudassar and you are watching my YouTube channel Chemistry with Mudassar Tanoli. In today's lecture I will discuss about chemistry definition, explanation with examples. Chemistry may be defined as the branch of science that deals with the study of matter, composition of matter, properties of matter, changes that occur in matter, and the laws and rules which govern these changes. साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें स्टडी की जाती है मैटर की, कंपोजिशन ऑफ मैटर की, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की और मैटर के अंदर जो चेंजेस आती हैं उन चेंजेस की स्टडी और उन लॉज और रूल्स की स्टडी जो इन चेंजेस को कंट्रोल करते हैं. The branch of science that deals with study of matter, composition of matter, properties of matter, changes that occur in matter, and the laws and rules which govern these changes. Chemistry may be defined as the branch of science that deals with the study of matter, composition of matter, properties of matter, changes that occur in matter, and the laws and rules which govern these changes. साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें स्टडी की जाती है मैटर की, कंपोजिशन ऑफ मैटर की, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की और मैटर के अंदर जो चेंजेस आती हैं उन चेंजेस की स्टडी और उन लॉज और रूल्स की स्टडी जो इन चेंजेस को कंट्रोल करते हैं. The first word which is used in the definition is matter. What is matter? Matter may be defined as anything that has mass and occupying space is called matter. हर वो चीज जो जगह घेरती हो, वजन रखती हो, मैटर कहलाती है. Matter exists in three physical states. Solid state, liquid state, and gaseous state. And the modern fourth one state of matter is called plasma state of matter. The next word which is used in the definition is composition of matter. What is mean by composition? कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपाउंड जो है वो कौन से एलिमेंट या एटमों से बना हुआ है. फॉर एग्जांपल, the formula of sodium chloride is NaCl. NaCl is composed of two elements. First one is sodium and second one is chlorine. The ratio between sodium and chlorine is 1:1. The formula of water is H2O. The ratio between hydrogen and oxygen in water is 2:1. The formula of glucose is C6H12O6. The ratio between carbon, hydrogen and oxygen is 6:12:6. The next word which is used in the definition is properties of matter. There are two types of properties. One is physical property and second one is chemical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस की जो ज़ाहरी हुसूसियात होती हैं उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं. फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ऑर्डर,
electronegativity, electron affinity. These are the physical properties of matter. Next one is chemical properties of matter. केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कौन सा प्रोडक्ट बनाता है. फॉर एग्जांपल, when hydrogen react with oxygen it will form H2O. हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है वाटर बनाता है. इसी तरह कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं. When carbon react with oxygen it will form carbon dioxide. और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर डिकम्पोज किया जाए तो when calcium carbonate is decomposed it is converted into carbon dioxide and calcium oxide. Calcium carbonate is the formula of limestone. तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके जो है कौन सा जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं, या अगर किसी कंपाउंड को डिकम्पोज किया जाए तो उससे आगे कौन कौन से मालिक्यूल या कौन से एलिमेंट्स जो है बनते हैं. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है वाटर बनाता है. और कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं. और इस तरह जो है कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया जाए तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनते हैं. द नेक्स्ट वर्ड विच इज यूज्ड इन द डेफिनेशन इज changes that occur in matter. There are two types of changes. One is physical change and second one is chemical change. Physical change जो होती है वो रिवर्सिबल होती है और फिजिकल चेंज के दौरान कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस जो है वो चेंज नहीं होती. फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल एंड देयर इज नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल, वाटर को अगर जो है हीट किया जाए तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. आइस को अगर हीट करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है और लिक्विड को दोबारा हीट करें तो वो गैसीय स्टेट के अंदर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं. अब इन वेपर्स को दोबारा कंडेंस करें तो ये लिक्विड स्टेट में दोबारा कन्वर्ट हो सकते हैं. लेकिन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस जो है चेंज नहीं हुई. आइस में जो है वाटर का जो फार्मूला है H2O, लिक्विड स्टेट में भी जो है वही फार्मूला है H2O और वेपर स्टेट में भी. ऐसा नहीं है कि वेपर स्टेट के अंदर जो है वाटर का फार्मूला H3O है. तो कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस जो है चेंज नहीं होती फिजिकल चेंज के दौरान. द नेक्स्ट वन इज केमिकल चेंज. केमिकल चेंज जो होती है उसमें कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंज हो जाती है और फिजिकल और केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होती. फॉर एग्जांपल, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड. जब सोडियम रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ ये सोडियम क्लोराइड बनाते हैं. सोडियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल एंड क्लोरीन इज ए हाईली पॉइजनस गैस. लेकिन जब ये सोडियम क्लोराइड के अंदर जो है सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनकी ये प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म हो जाती है. और इनसे सोडियम क्लोराइड जब बनता है तो उसके अंदर जो है सोडियम की हाईली रिएक्टिव होने वाली प्रॉपर्टी और क्लोरीन की हाईली पॉइजनस गैस की प्रॉपर्टी जो है वो नहीं होती. और NaCl साल्ट का फार्मूला है जो कि जो है खाने के तौर पे यूज़ करते हैं. अब NaCl जो है साल्ट जो है इसके अंदर ना तो सोडियम की वो हाईली रिएक्टिव वाली प्रॉपर्टीज़ हैं और ना ही क्लोरीन की हाईली पॉइजनस गैस वाली प्रॉपर्टीज़ हैं. द लास्ट वर्ड विच इज़ यूज इन द डिफिनीशन इज laws and rules which govern these changes. What is mean by laws and rules? Laws and rules mean Boyle's law, Charles law, Avogadro law, Dalton law. In short word, we can say that the complete study of matter is called chemistry. Thank you very much.